Look, as you know, today we'll be talking about the basic aspects of startup funding. Right from the very basics, like from bootstrapping, seed, and then to angel investment, venture capital, series A, B, C, D, E, and how this equity, sharing and this when somebody invests, so how that works. So we'll be talking about all that aspect today. Sure. All right. So, good evening, everyone. And today we'll be talking about the most important aspect of startup these days. Not everybody considers this as the most important aspect, but funding काफी important है. और funding को discuss करने के लिए we'll have with us Mr. Rohit Sardana. He is the CEO and co-founder of Incubate IND, and he also works with a lot of startups in various parts of the country. So welcome, Rohit. We are Thank you. absolutely Welcome, happy Rohit. to have you here, and the stage is all yours. You can start. Hi everyone. Okay. How? I don't know. I mean, I was told to take this session on funding. अभी सबके Yeah. लिए, especially after COVID-19, to manage and run the startups would be the toughest challenge, and therefore I think ये डबल एजेड स्वॉर्ड है. स्टार्टअप्स को पैसे चाहिए होंगे और इन्वेस्टर्स का विश्वास अभी थोड़ा थोड़ा डगमगा गया होगा. सो दीज आर द टफेस्ट टाइम. सो अगले 6 महीने आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आप अपने पैसे लगाइए, अपने एज हिंदी में बोलते हैं जान और माल लगाइए. आपका आपका फेलियर का परसेंटेज कम हो जाएगा जब आपके खुद के पैसे और खुद की जान लगेगी. एंड दैट्स अ वे. एंड दैट in a startup and in English term is called bootstrapping. आप अपने पैसे लगाइए, आप अपनी हिम्मत लगाइए और अपने स्टार्टअप्स को बूटस्ट्रैप करिए. बूटस्ट्रैप का मतलब है आपके खुद के पैसे. विल समवन मैनेज द पीपीटी और डू आई शेयर माय स्क्रीन? I'm managing. Yeah. Perfect. I'm doing Perfect. Okay. बूटस्ट्रैपिंग का मतलब इन अ हिंदी मैनर इज कि आप अपने, ओके लेट मी टेक यू थ्रू द, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. आप सबको Just पैसे क्यों one moment, Rohit. What we'll do is after each slide, maybe we'll take a pause of about 2 minutes. कुछ questions हमको continuously आते रहते हैं. So Adansu will take that question, and once we are done with those questions, again we'll move to the next slide. So after every Absolutely. slide, we'll have a pause, and we'll see कि किनको कितना समझ में आया, क्या कोई query है. We'll take those questions और फिर हम आगे बढ़ेंगे. Sorry to Absolutely. interrupt. That works that works the best. Thank you for setting it in. हाँ, so bootstrap startups का, and I see some of the experts here, they can also vouch for it and tell you, bootstrap startups की word over इज्जत किसी अलग तरीके से होती है. इफ अगर आई डोंट नो, अगर आप सबने एक मूवी देखा है द सोशल नेटवर्क, पता नहीं देखा है या नहीं देखा. इट्स अबाउट हाउ फेसबुक गॉट स्टार्टेड. इफ यू वर टू सी इनिशियल सीन्स, मार्क जुकरबर्ग bootstrapped Facebook, then got his friends to put in some basic money, they started working. बूटस्ट्रैपिंग का मतलब यही है, 2-3 दोस्त मिलकर या अकेले मिलकर के आप अपने पैसों से एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं. आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहता है बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टर ईटिंग योर ब्रेन्स. वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करनी. यू आर जेन्युइनली योर ओन बॉस और आप उसको, वेरी गुड क्वेश्चन. डिपेंडिंग अपॉन, सी वन फंडामेंटल थॉट प्रोसेस इज, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में ज्यादा पैसे नहीं लगते एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सेटिंग अप अ फैक्ट्री और अ प्रोडक्ट. If you are setting up a services business, which largely India में सबसे ज्यादा services business होता है, मैं भी एक services business करता हूँ. Problem with entrepreneurs और startup founders is हम अपने time की कीमत लगाना शुरू कर देते हैं, which fundamentally is wrong. क्योंकि अगर आप एक business लगा रहे हैं तो
आपको अपने टाइम की कीमत नहीं लगाना, आपको ये देखना है कि 2 लोग आपने जो हायर करे उनकी क्या कॉस्ट है और उससे आप आगे बढ़िए। आज आई डोंट नो, आप सब यंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऐसे सोचें तो एक पान वाला शॉप, या जो वो छोटा सा जिसको हम पान की थड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन जबलपुर, बट पंजाबी में थड़ी बोलते हैं, उस पान की दुकान सेटअप करने के लिए भी 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट है ना वो बेस्ट हैं, वो सबसे अच्छे स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हैं। एंड आई विल गिव यू टॉप 3 रीजन। आपके पास फेलियर का डर नहीं है। हम जैसे लोगों को जो 15 साल नौकरी कर कर आए मीडिया कंपनीज में, वीवर हम मतलब इतना डर था, फैमिली का डर था, फेलियर का डर था, सोसाइटी का डर था कि अब जब आपने स्टार्टअप करना चाहा तो आपकी आपकी जिसको बोलते हैं हिंदी में बैंड बजा हुआ था। एट योर एज देयर इज नो फियर। यू ओनली थिंग दैट यू विल, अगर तो आपकी एज में खुदा ना खास्ता कोई फेल नहीं होगा, अगर आप फेल होते भी हैं अभी के टाइम में आपको एक नए नजरिए से देखा जाता है। टुडे फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स आर इन डिमांड, और उनके जॉब लगने के potentials are far higher than people like us. And maybe Agranshu could add more to it, but failed entrepreneurs today are more respected than ever before. आप अभी स्टार्ट करिए। जी 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 बिल्कुल। और जैसे कि रोहित, अभी एक बहुत हमारे यहाँ पर एक मतलब कहावत चलती है अभी स्टार्टअप्स के लिए कि जब तक आपको अपने बिजनेस पर विश्वास नहीं है, जब तक आप उस पर पैसा नहीं लगा सकते, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई और हमारे बिजनेस पर पैसा लगाए। तो वो और जो एक विश्वास है एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अगर आप ये सच्चाई देखें पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली द एंजल इन्वेस्टमेंट में, एक टाइम था 5 साल पहले आप एक एक्सेल शीट लेकर जाते थे और एक पावर पॉइंट लेके जाते थे और इन्वेस्टर आपको एक चेक काट के दे देता था। वो बिल्कुल ओवर हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इन्वेस्टर टुडे आस्क इज, आपने खुद क्या किया, आपने कितना टाइम पैसा खुद का कितना लगाया। और अगर आपने बोला कि मैंने 3 साल लगाए और 5 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए, आपकी इज्जत उसकी नजर में बढ़ जाती है और आप पे वो पंट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये सोचना है। और देखिए, अब कोई भी बिजनेस करना है तो पैसे तो चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपके फैमिली और पेरेंट्स अगर आपको फंड करें तो बेस्ट है। और अगर वो फंड नहीं कर रहे, इमेजिन आपके पास एक आइडिया है और आप अपने फादर को बोल रहे हैं, गिव मी 20,000 रुपीज, आई वांट टू ट्राई। तो अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे, तो मे बी आपका आइडिया उतना सॉलिड नहीं है कि आप अपने क्लोजेस्ट इन्वेस्टर को मना नहीं पा रहे, तो आप बाहर वालों को तो भूल ही जाइए। द फर्स्ट इन्वेस्टर्स हैव ऑलवेज बीन, हमारी भाषा में उनको बोला जाता है 3 F's, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूल्स। या तो दोस्त पैसे लगाते हैं, या फैमिली वाले लगाते हैं, या एकदम जो पागल लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, वो कहते हैं लगा देते हैं। सो अगर आप पहली बारी में अपने फैमिली को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, देन सीरियसली फंडामेंटली आपके बिजनेस प्लान में कुछ प्रॉब्लम है। तो कमिंग बैक, देखिए बेस्ट है बूटस्ट्रैप करिए आप, इज्जत। और अभी क्या है ना, देखिए मैं आपको और फंडामेंटली एक और चीज बताता हूँ। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक इन्वेस्टर पे जाते हैं और उसको बोलते हैं मुझे लाख रुपए चाहिए। वो कहता है कि 40% कंपनी आपकी मेरी हो गई, हाइपोथेटिकली एक एनवायरनमेंट में। बट जब आप 1 लाख का बिजनेस कर चुके होते हैं और फिर उसको कहते हैं कि 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो 5 लाख आप उसको 5% या 10% इक्विटी पे देते हैं, तो आपकी इक्विटी भी बचती है। आप पहला 1 साल अगर आप निकाल लें तो आपकी इक्विटी, आपकी फंड रेजिंग की क्षमता और आपकी फंड रेजिंग की क्वांटिटी 10x बेहतर हो जाएगी, इफ नॉट 20x 30x। 100% बोल रहा हूँ। डेफिनेटली। और रोहित, बिल्कुल यही बात जो है यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली मतलब स्टार्टअप कम्युनिटी में प्रोपोगेट किया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बूटस्ट्रैप कर सकेंगे अपने बिजनेस को, उतना ज़्यादा अच्छा है। और बिल्कुल जैसा आपने अभी मेंशन किया कि हमको एक काफ़ी बड़ा इक्विटी
40% मतलब हमारे जो हार्ड वर्क से हम जो सेटअप कर रहे हैं उसका 40% हमको किसी को देना पड़ रहा है। हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप करके और कुछ टाइम के लिए अगर अपने रेवेन्यूज जनरेट करके उसको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते चलें, उसी से अपना बूटस्ट्रैप भी कर रहे हैं, तो हम काफ़ी इक्विटी बचा ले रहे हैं और जो हमारा बिजनेस है उस पर हमारा होल्डिंग बहुत बड़ा रह रहा है। एब्सोल्युटली। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि फियर ऑफ फेलियर पे कुछ आ रहे हैं कि हाउ अंबर वर्मा, जस्ट हियर मी आउट। फियर ऑफ फेलियर तब होता है जब आपके पास खोने को कुछ हो। एट योर एज आपका क्या फियर है कि लोग आपको इज्जत नहीं देंगे या दोस्त इज्जत नहीं देंगे? आप फेल होकर के देखिए, इज्जत और एम्प्लॉयबिलिटी 10x बेहतर हो जाएगी। सी थिंग्स हैव चेंज। पिछले 5 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ये जो अभी हम सोच रहे हैं ना कि फियर फेलियर और वो सब, ये अब नहीं रहा। मे भी 5 साल पहले ऐसे होता था। मैं आपको 10 जॉब के ऐसे वो दिखा सकता हूँ लिस्टिंग्स जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि फेल्ड एंटरप्रेन्योर की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर जो फेल हुआ होगा एटलीस्ट उसने हिम्मत मारी होगी, उसने सब कुछ किया होगा, उसकी बहुत इज्जत है अभी। और एक बात बताऊं सर, अंबर, फियर से क्या डरना? आज आप ये देखो, आपके अराउंड कोविड-19 होने के बाद 50% वर्कफोर्स की नौकरी चली जाएगी अगले 6 महीने में। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप नौकरी में सिक्योर्ड हो। तो फियर तो हर जगह ही है यार। फियर तो फिर अपने काम में अगर फियर होगा तो आप 10x हिम्मत लगाओगे और उसके 50x रिजल्ट्स आएंगे। यार फियर से नहीं डरना। मतलब ये हो सकता है कि हमारे एक प्रॉब्लम आती है जो कॉन्स में शायद मैं एड्रेस कर सकता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स को ना एक प्रॉब्लम होता है कि वो अपने आइडिया से ना बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार में कभी कभी एग्जीक्यूशन को छोड़ देते हैं। आपको आइडिया इज एज गुड एज इट्स एग्जीक्यूशन, और मे बी एग्जीक्यूशन की ज्यादा वैल्यू है आइडिया से भी। आइडिया 1000 हैं, जो लोग अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं वो उसकी वैल्यू है। तो आप ये जरूर करिए, आप सीखते रहिए। हर 3 महीने में आप एक ऐसा बिजनेस रिव्यू करते रहिए कि अगर आपको पिवट करना है थोड़ा सा इधर उधर तो वो करते रहिए। आप सिंपल देखिए सर, फ्लिपकार्ट, आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। फ्लिपकार्ट वॉज नॉट एन ई-कॉमर्स पोर्टल व्हेन दे हैड स्टार्टेड। उन्होंने किताबें बेचना शुरू किया था, खाली किताबें। दे वर लाइक एन इन्फीबीम ऑफ सॉर्ट्स। वो खुद जाके डिलीवरी करते थे। देन दे पिविटेड टिल द टाइम उनको एक लॉटरी लगा जब उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया। बिकॉज इंडिया में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लोग शेयर 5 साल पहले या 10 साल पहले नहीं करते थे ड्यू टू द फियर ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स। जिस दिन उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी लॉन्च किया, फ्लिपकार्ट वेंट लाइक जूम। अब आप ये सोचिए सर, वो पिवट करते रहे और फियर ऑफ फेलियर उन्होंने हटा दिया। अगर आप सचिन बंसल के पुराने इंटरव्यूज देखें, वो लोग खुद जाके डिलीवरी करते थे बुक्स की। और ऐसे ही स्टार्ट होंगे यार सारे ऑन। सी नॉट एवरीवन विल बी बोर्न विद सिल्वर स्पून। कई जगह होगा जहां पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। विजय शेखर शर्मा को 15 या 16 इयर्स लगे टू लॉन्च पेटीएम और टू बिकम पेटीएम। उससे पहले वो अपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग की कंपनी चलाते थे। उससे पहले एयरटेल का कुछ काम करते थे। तो एक आई डोंट नो, मैकडॉनल्ड्स की एक मूवी है, नेटफ्लिक्स पे आई है, उसका नाम है द फाउंडर। उसमें एक कोट है, 30 years of struggle is equal to 1 day of success। वो लोग भूल जाते हैं। देखिए, सबको हीरो जल्दी नहीं बनेंगे सर। वो आप अभी, और जिसको पहले दिन से हीरो बनना है वो स्टार्टअप नहीं चला पाएगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसे ही कर्टली बोल रहा हूँ। वो इस कंट्री में तो नहीं होगा यार। ये कंट्री थोड़ा टफ है, बट ये कंट्री में बहुत पोटेंशियल है सर। आप सिंपल, सॉरी नहीं, श्योर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बूट स्ट्रैपिंग पे एक टाइम अभी इसलिए इतना दे रहे हैं क्योंकि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव एज एन एंटरप्रेन्योर। तो हमारे जो ऑडियंस है उनको इस बूट स्ट्रैपिंग पे काफी क्वेश्चंस भी है
और क्योंकि ये ही फर्स्ट स्टेप है, बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ज्यादा से ज्यादा आप जैसे अभी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, इतना अच्छा काफी लोगों के यहाँ मैं कमेंट्स देख रहा हूँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करेंगे रोहित, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑडियंस भी काफी पॉजिटिव यहाँ पर वाइब्स के साथ बैठे हुए हैं। सर आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप पहले 6 महीने अपने पैसे से बिजनेस करिए, आपको एक एक पैसे की वैल्यू समझ आ जाएगी। आपको जो अभी खर्चने की आदत है इन्वेस्टर के पैसे पे, वो सब बंद हो जाएगी, और आपको एक एक, हम पुराने जमाने में बोलते थे ना, एक एक पाई की कीमत पता चल जाएगी कि कैसे खर्च करना है। बूटस्ट्रैप की और बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर्स की इज्जत अब जिसको बोलते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे है। बिल्कुल सर देखिए, आप ऐसा भी सोचिए, आप ऐसे सोचिए, आप कई इन्वेस्टमेंट, आई मीन वी आर नॉट टेकिंग दोज नेम्स, बट कई बड़ी स्टार्टअप जिनको आप देखते हैं और जिन फाउंडर्स ने उनको स्टार्ट किया, वो अब वो कंट्रोलिंग में भी नहीं है। They kept raising monies, उनकी इक्विटी कम होती गई, they can't even, हम इंडिया की बात, मैं इंडिया का एग्जांपल नहीं लूंगा, बट आप ट्रेविस कैलनिक जिसने उबर बनाया, उसको बोर्ड ने निकाल दिया बिकॉज उसने इतना फंड रेज किया कि अपनी इक्विटी कम हो गई और उसको बोर्ड ने। आप सर अपनी कंपनी पे खुद ही कंट्रोल रखिए और खुद ही चलाइए। दिस इज एज गुड। श्योर Rohit, we can move on to we have some now we can move on to the next part also, क्योंकि शायद बूट स्ट्रैपिंग पे हमने काफी, और जो जैसे कि हमने इसमें ये भी डिस्कस कर लिया कि आपको सबसे पहले अपने बिजनेस पे खुद एक आपको फेथ दिखाना है, और आपको किसी भी तरीके का फियर नहीं रखना है, और एंटरप्रेन्योरशिप में आते समय ही हमें कहीं ना कहीं फियर्स को पीछे छोड़ के आना पड़ता है। क्या सारे फियर्स एक साइड है, दिस इज डेफिनेटली रिस्क जो हम ले रहे हैं, बट इसके हमने शुरू के भी जब हमारे सेशन थे उसमें कहा था कि एंटरप्रेन्योर्स का अब जो है और ज्यादा एक रिस्पेक्ट होने वाला है सोसाइटी में, और एक लाइफ टोटली अलग होने वाली है। तो इसलिए जो है आप आ रहे हैं तो सारे फियर्स को पीछे छोड़ के, और अपने जब आप अपने बिजनेस को बूट स्ट्रैप कर रहे हैं तो उस चीज पे एक अलग ही आपका लेवल फिर होने वाला है, और उसका जो है फंडिंग कम्युनिटीज में इन्वेस्टर्स के सामने भी एक अलग ही लेवल से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। We can move on to the next level of funding, which you can take it now. Seed funding. सर बेसिकली सीड फंड उसको बोलते हैं हिंदी में जिससे आपकी कंपनी की ओरिजिनेशन हो सके, बिल्कुल, कि जिससे आप मतलब पहला ऑफिस सेटअप कर सकें, पहली कुर्सी खरीद सकें, पहला इंटरनेट कनेक्शन खरीद सकें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और उसके वेरियस तरीके हैं। वेस्ट में, सिलिकॉन वैली में क्राउड फंडिंग बहुत बड़ा है। आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक किकस्टार्टर, इंडिगोगो देखा है कि नहीं, जहाँ पे लोग अपना फर्स्ट प्रोडक्ट डालते हैं और उसको 100 लोग इंकरेज करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वैसा इकोसिस्टम है नहीं। इंडिया में लोग एक दूसरे की सक्सेस को देख करके पैसे नहीं देते। तो इंडिया थोड़ा सा यार यूनिक है, तो क्राउड फंडिंग इंडिया में मे बी इट विल नॉट वर्क। कॉर्पोरेट सीड फंड बहुत है, जैसे हर एक बड़ी कंपनी ने आज एक सीड फंड बना लिया है इन ऑर्डर टू, जो उनकी जिसको बोलते हैं आइडियाज और ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता है, उन स्टार्टअप्स को वो फंड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम मैरिको के साथ काम करते हैं, मैरिको फाउंडेशन के साथ। मैरिको ने अभी कोविड-19 के लिए वेंटिलेटर पे एक ग्रांट लॉन्च किया, और जो लोग अच्छा वेंटिलेटर का आइडिया बना रहे थे उन्होंने उनको 10-10 लाख रुपया बोला इसके प्रोटोटाइप बनाते रहो। अब वो 10 लाख इज अ सीड फंड, that 10 lakhs is a seed fund for them, definitely. गवर्नमेंट बहुत बीच में कर रही थी, फिर बंद हो गया, बट आई एम श्योर विद वंस दिस कोविड-19 गेट्स ओवर, सी ऑल ऑफ यू, ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप एक ग्लोरियस फेज में हो। एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, आत्मनिर्भर व्हाटएवर इंडिया, आत्मनिर्भर इकोसिस्टम। आप इंडिया की प्रॉब्लम्स इंडिया में सॉल्व करें और इंडिया के लिए बनाएं, और गवर्नमेंट उसको
बहुत सपोर्ट देगी। एज सुन एज दिस कोविड-19 सिचुएशन इम्प्रूव्स, आत्मनिर्भर फंड, आत्मनिर्भर व्हाटएवर आइडियाज पे पैसा बहुत मिलेगा। आप अपने शहर की, गांव की छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, उसको सॉल्व करिए, बैंक्स आपको सीड फंड देगा। इंक्यूबेशन सेंटर भी काफी सीड फंड देते हैं। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर आई एम श्योर गिव्स लॉट ऑफ सीड फंड टू स्टार्टअप्स। एंजल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा टफ होगा इस एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा टफ होगा। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बेसिकली लोन ले लो आप, सिट भी देता है, इंसर्ट सिट भी देता है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, उनसे लोन तो लेकर के रोहित, आप मैं अपना। थोड़ा सा चाहूंगा, रोहित, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, थोड़ा सा हम एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, क्योंकि काफी बात होता रहता है, और पूरा स्टार्टअप जो अभी हमारे वाना बी स्टार्टअप्स भी हैं, और चाहे जो पूरा स्टार्टअप कम्युनिटी भी है, और जो लोग अभी एंजल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, डेफिनेटली वो सभी यहाँ पर काफी उम्मीद से होंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एंजल इन्वेस्टर्स और एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन चीजों पर भी एक बार थोड़ा सा आपका जो है आप अपने व्यूज रखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जैसा नाम बोलता है, एंजल मतलब, बिल्कुल एंजल मतलब भगवान के फरिश्ते। एंजल बिल्कुल इन्वेस्टर्स आर फरिश्ते। हाँ एंजल, हाँ आई मीन एंजल इन्वेस्टर्स आर द वंस जो आप पे इनिशियल फंड लगाते हैं और आपके साथ देन काम करते हैं इन ऑर्डर टू मेक बिग। उनका मकसद ये होता है कि आप इतने बड़े हो जाइए कि जब उनको सीरीज ए बी सी मिलेगी तो उनको एक अच्छा एग्जिट मिले। आई मीन एंजल इन्वेस्टमेंट टिपिकली बहुत अर्ली स्टेज पे आते हैं। तो पहले 6 महीने जब आपने निकाल लिए और आपको बैंगलोर में एक ऑफिस सेटअप करना है और आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए, एंजल इन्वेस्टर तब आता है आपके साथ लग के काम करता है, और जब आप 100 करोड़ बनाते हो तो वो उसकी इक्विटी इनकैश करके निकल जाता है। एंजल इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले बहुत हाई था, ऑर्गेनाइज तरीके से। इंडिया एंजल नेटवर्क और सब जगह के एक एक एंजल नेटवर्क बन गए थे। सब HNI जिनके पास ज्यादा पैसे थे, जिनकी सेकेंड जनरेशन आ रही थी, सबने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। पिछला 1 year हैज बीन बैड फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज, बट माय हंच इज पोस्ट कोविड इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एंजल फंड बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। एंजल इन्वेस्टमेंट हैविंग सेड दैट विल ओनली किक इन मतलब 6 या 1 साल के बाद। अब वो आइडियाज और पावर पॉइंट पे एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। अब आपको एक्सपेंशन के लिए मिलेगा और आपको प्रोडक्ट एनहांसमेंट के लिए मिलेगा, तो उसके लिए मिलेगा। और टिपिकली एंजल इन्वेस्टर्स, और अब अगर आप देखें इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। आप इनमें से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं एज एन व्हेन योर आइडिया कम्स टू दैट लेवल। और इंडिया में अभी सीन अच्छा होगा एंजल इन्वेस्टर्स का, बट अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आज अगले महीने 2 महीने बाद एक स्टार्टअप पे काम कर दें शुरू, तो 6-8 महीने में जब मार्केट खुलेगा तो आपके पोटेंशियल ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट विल बी मच हायर। डेफिनेटली। और एक और मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ के मतलब हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए, एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली जो हैं सिंगल एंटिटी एक या एक ग्रुप हो सकता है लोगों का जिनके पास काफ़ी कुछ पैसा है, हम बिल्कुल सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, और उन्हें आपका आइडिया अच्छा लग रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें आपके बिजनेस में उनको एक पोटेंशियल दिख रहा है कि ये ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली वो आपके साथ आपको कुछ पैसे देके आपके साथ इन्वेस्ट करके और कुछ आपसे इक्विटी डेफिनेटली उस समय मांगते हैं, और फिर ये जो है ये फंड आपको बहुत मदद करता है आपके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। Yes, Rohit, we can move on to the next points like, yeah, friends and family we have already covered in bootstrapping also. या हमेशा स्टार्टअप के फर्स्ट इन्वेस्टर्स हमेशा से फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे। अब आप उसको बूटस्ट्रैपिंग के लिए बोल दीजिए, एंजल बोल दीजिए, सीरीज ए बोल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब वो आप कुछ मर्जी बोल दीजिए, वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही आप पे पहला पंच लेंगे। हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, आगे चलते हैं। हाँ सर, डेफिनेटली डेफिनेटली
कुछ और फंडिंग स्टेजेस पे अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जब हमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो वो जो है हमारा जब इक्विटी हम दे रहे होंगे, क्या प्री स्टेज होगा, कैसे सेल्फ फंडिंग्स काम करेंगे, इन चीज़ों पर भी ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल का और उनके लिए है जो शायद स्टार्टअप जो अभी स्टार्टअप्स कर चुके हैं कहीं ना कहीं, जिन्होंने अगर उन्हें सीड फंड्स मिल चुका है तो ये नेक्स्ट स्टेजेस की जो फंडिंग है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। हमारे सारे व्यूअर्स उनको आपके थ्रू जो है एक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और लोग इसको जान सके। सी अगेन जैसा अग्रांशु ने बोला, once you cross the stage of मतलब आपने धंधा जमा लिया, अब आपको एक्सपेंशन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओयो ने जब सीड फंड रेज किया तो उसने 3 होटल खोले। 3 होटल में धंधा चलना शुरू हो गया, लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। ओयो बड़े इन्वेस्टर्स पे गया, उन्होंने बोला आई वांट नाउ, मुझे 100 होटल खोलने हैं। तो उनको आप उसको सीरीज ए बोल दीजिए, प्री सीड, आफ्टर पोस्ट सीड सीरीज बोल दीजिए। उनको कुछ पैसे मिल गए, उन्होंने 100 होटल खोले। 100 होटल, और हर स्टेज पे इक्विटी डाइल्यूशन होता रहेगा। मतलब ये आप अपने दिमाग में लेके चलिए। 100 होटल खोले और 100 होटल पे रिस्पॉन्स आने लग गया। तो ओयो बड़े इन्वेस्टर्स पे गया, बोला मेरे को 10,000 खोलना है। तो सीरीज ए रेज कर ली। और हर एक इन्वेस्टमेंट का एक साइज होता है। एंजल मतलब 10 लाख से लेकर के बीच में $1 मिलियन तक हो रहा था, 7 करोड़ रुपए का। बट आइडियली $500,000, 3.5, 4, 5 करोड़ पे रुक जाता है। इतना ही होता है। मतलब उसके बाद आप वेंचर जो सीरीज ए होता है वो $1 मिलियन से लेकर के $5-6 मिलियन तक हो जाता है, जहाँ पे आप और एक्सपेंशन। बट आपको वेंचर सीरीज ए पहुंचने के लिए आपका बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस चलना होना चाहिए। आप मतलब यू शुड हैव बीन ऑपरेशनल फॉर ऑलमोस्ट 2 years। मतलब कई केसेस में ये पहले साल में भी हुआ है, बट अभी नहीं होगा। अभी थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। तो कमिंग बैक, ओयो ने 100 से शुरू किया, 100 सीड फंड से खोला, 1000 फिर खोला। फिर उन्होंने सीरीज ए से 10,000 खोला, सीरीज बी से 10,000 को 1 लाख कर दिया। सीरीज डी ई आते आते दे वेंट टू चाइना, दे वेंट टू इंग्लैंड, दे वेंट टू लंदन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो एवरी स्टेज योर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल या पैसे रेज करने की प्रोपेंसिटी बढ़ती जाएगी। बाय द टाइम आप सीरीज सी डी पे आओगे, आप $50 मिलियन की बात कर रहे होगे, मे बी 300, 400, 500 करोड़ रुपए की बात कर रहे होगे। आई थिंक जब आप ये करोगे स्टार्टअप शुरुआत से, तो आपको समझ आएगा कि इंडिया में और इस स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत जान और हिम्मत लगती है। तो जितने भी हमारे यहाँ अच्छे स्टार्टअप बने हैं जो इस स्टेज पे पहुंचे हैं, उनके लिए one of course we should thank them and salute them, because it takes a lot of effort. Only 1% or maybe lesser than 1% reach this level. Rest everyone hovers around $500,000, $1 million kind of a dollar kind of a valuation. इस सीरीज में जाने के लिए बहुत दम लगेगा। What is the last one? सीरीज एच के बाद क्या लिखा है? I can't read. Oh, 1 second. IPO actually. ओहो, IPO, या IPO तो चलो इंडिया में ज्यादा अभी तक हुआ नहीं है, होगा अभी शुरू हो जाएगा IPO। तो अभी आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं क्या सारे? आई डोंट नो, आई कांट सी योर रिस्पॉन्स। हाँ, नेटफ्लिक्स पे एक स्टार्टअप की मूवी आई है कॉल्ड अपस्टार्ट्स, UPST, अपस्टार्ट्स। आप अगर, और वो हिंदी की मूवी है। वो द स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स हु स्टार्टेड अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो लूजली बिल्ट है स्नैपडील की स्टोरी पे, लूजली। आप जरूर देखें, आपको पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाएगा। अपस्टार्ट्स
हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छे, हम जितने सारे, देखिए अगर कुछ हमें जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड हमें जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम कंटिन्यूसली देख रहे होंगे कि हमें एक बहुत, क्योंकि मूवीज जो है हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, तो डेफिनेटली हम अगर कहीं ना कहीं इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारे जो अभी है, अब जो वानाबी स्टार्टअप्स हैं, खास करके जो हमारे व्यूअर्स यहाँ पर हम बेसिकली जिनको फोकस कर रहे हैं, वो दे आर ऑल वानाबी स्टार्टअप्स, जो कहीं ना कहीं एक आइडिया से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए बहुत एक इन्फ्लुएंशियल जो है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होंगी ये चीज़ें, और डेफिनेटली उनके लिए हम इसीलिए हमने एक करा भी है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। हम कंटिन्यूसली अपने स्टार्टअप्स के लिए जो है, जो हमारे पूरे ऑल ओवर एमपी, ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो आज स्टार्टअप पाठशाला, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अच्छा, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमने जो हमारा समर्थ भारत के लिए, या हमने जो अभी बात किया हुआ कि आत्मनिर्भर भारत के ही तहत हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इसीलिए हमने ये स्टार्टअप पाठशाला प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को स्टार्टअप्स के लिए मोटिवेट कर सके, और उनको जो है आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों से कहीं ना कहीं एक उन्हें वो एक राइट गाइडेंस मिल सके। तो हर तरह से, क्योंकि जो लोग अभी वानाबी स्टार्टअप्स भी हैं, वो आज फंडिंग्स के बारे में सब कुछ जानने उन्हें मिल जाएगा। इसमें कंटिन्यूसली और भी हमारे सेशंस होंगे जब आप लोगों के और एड ऑन्स होते जाएंगे। तो ये हमारा जो अभी ऑलमोस्ट कोविड का टाइम है, जब लोग कम से कम अपने घरों से निकल रहे हैं, हम एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टाइम है कि नॉलेज हम ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर लें, और इसके बाद जो है उस सभी को एक स्टार्टअप का, जैसा कि हमने पहले भी सेशंस में काफ़ी डिस्कस हुआ है, और आप भी मेरी बात से शायद इसको डेफिनेटली इत्तेफाक रखेंगे कि स्टार्टअप के लिए डेफिनेटली उसके आइडिया से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जीक्यूशन। तो जब इस इस कोविड सिनेरियो के बाद हम बाहर निकल के, और वैसे भी हम काफ़ी अब स्टार्ट हो गया है चीज़ें, तो जब हम एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे, एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, तो डेफिनेटली हमारे स्टार्टअप्स जो हैं एक काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। Absolutely. और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन कि भाई स्टार्टअप में इंक्यूबेशन सेंटर फाइनेंशियली कितने तक मदद कर सकते हैं, तो जो मेनक जी हैं इनको बताना चाहेंगे कि सीड फंड्स तक जो है डेफिनेटली इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको मदद करते हैं, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इंक्यूबेशन सेंटर्स का, वो होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जहां पर हम आपको चाहे एंजल इन्वेस्टर से, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट से वो कनेक्ट करने का भी जो काम है, वो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू किया जाता है। तो हम अगर बोलें कि इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू आपको कितना फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन सभी इंक्यूबेशन सेंटर्स कुछ ना कुछ बेसिक जो है वो लेके चलते हैं अपना सीड फंड, और जैसा कि बताया अभी रोहित ने भी कि हमको वो एक सीड फंड आपको मिल जाएगा जिससे आप कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम किसी ना किसी फॉर्म में दिलाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी जैसे अब हम नेक्स्ट मूव करना चाहेंगे, ये भी रोहित हमें जस्ट आपको करने ही वाला था कि कुछ और इस इक्विटी और शेयर होल्डिंग, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो अभी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो मैंने कहा हम बार बार जो टारगेट कर रहे हैं, शायद वानाबी स्टार्टअप्स भी हैं, तो उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग कि इक्विटी क्या होता है, कैसे शेयर होल्डिंग्स दी जाती हैं, एक बार इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम काफ़ी बेसिक से भी फोकस कर रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके, और इसीलिए मैंने आपको ही डायरेक्टली ये चीज़ कर दिया है। आप समझाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा हमारे व्यूअर्स को कोशिश करता हूँ। तो इमेजिन आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंडिया में एक कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए एक पेड अप कैपिटल होती है, वो टिपिकली 1 लाख रुपए होती है, उससे रजिस्टर होती है। और टिपिकली फार्मूला यह होता है कि 1 लाख रुपए चाहिए एक कंपनी को रजिस्टर या अप एंड रनिंग करने के लिए। तो इनिशियली दोस्तों में या मतलब लार्जली ऐसे होता है कि जिसने जितने पैसे डाले वो उतने शेयर्स ले गया। तो इमेजिन रोहित ने 50,000 डाले तो 50% वो ले गया, सर ने 30,000 डाले तो 30% ले गया, किसी ने 5,000 डाले तो 5,000 ले गया, एंड सो ऑन। एंड दैट्स अ वे लार्जली इंडिया में
कंपनीज शुरू होती हैं फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये वही इक्विटी है कि 1 लाख आपकी पेड अप कैपिटल है, तो आपने 40% डाला, 40% डाला। तो दो लोगों ने पहले, और जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जब हमने कंपनी स्टार्ट करी तो हमने बोला कि हम 50-60% डिवाइड कर लेते हैं इक्विटी और 40% छोड़ देते हैं। We will give it out to employees, we will give it out to 1 or 2 mentors that we want, and then we will go out and raise some capital और उसको दे देंगे थोड़ी सी। तो जब आपने 4 महीने बढ़ा लिया, 4 महीने काम कर लिया, तो एक शेयर की वैल्यू बेहतर हो गई। तो हमने, जो मैंने 40,000 रुपए में 40% खरीदा था, मैंने इसे अगला 40,000 रुपए में खाली 2% बेचा या 5% बेचा। तो बट टू अगेन, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आप 3 लोग दोस्त मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और लाख रुपए पेड अप कैपिटल कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यही बनेगा कि जो जितना पैसा डाले वो उतनी इक्विटी ले ले। अब ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, हम उसकी डिस्कशन नहीं कर सकते, बिकॉज ये फॉर्मूला इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज कौन कितना काम करता है उसकी एक वैल्यू है। बट दोस्ती जब होती है, जब स्टार्ट होता है, तो लार्जली ऐसा ही होता है कि जो जितने पैसे डाले, जो जितना, और फिर पैसे भी सर वही ज्यादा डालता है जिसको उस आइडिया पे ज्यादा विश्वास होता है। तो इक्विटी इनिशियली तो ऐसे ही चलती है कि जो जितने पैसे डाले हैं जिसको, और वो पैसे अगेन इट कम्स बैक कि उसको कितना विश्वास है इस आइडिया पे। तो लार्जली जो जिसका आइडिया होता है वो 50% इक्विटी या 51% इक्विटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली हमें लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू रन अ कंपनी। तो वो 51,000 डाल करके या 52,000 डाल के 51-52% ले लेता है। बाकी दो, जिसको हमारे टर्म्स में को फाउंडर बोलते हैं, उनको वो बाकी इक्विटी उनसे पैसे लेकर के बंटवा देता है। ये वो स्लाइड है। कोई क्वेश्चन है अभी? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं डेफिनेटली इसको सारे व्यूअर्स के लिए, आशीष वाल्मीकि जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि एनी प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर वी कैन पुट फॉरवर्ड आवर आइडिया एंड गेट अट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टर्स, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म? मतलब सर, अगर आप देखा जाए तो इंक्यूबेशन सेंटर्स इन एवरी सिटी डज दिस। जो आपका आइडिया सुनते हैं, आपको राइट गाइडेंस देते हैं, आपको मेंटरशिप देते हैं और आपको इन्वेस्टर से मिलवाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाट इंक्यूबेशन सेंटर्स आर फॉर। हैविंग सेड दैट, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे भी अपना आइडिया अपलोड कर सकते हैं, बट वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू जाएंगे। तो आप अपना पहला आइडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ डिस्कशन करिए। अभी आई डोंट नो, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब एवरी कॉलेज हैज एन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, एवरी यूनिवर्सिटी हैज एन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। there are players like Jabalpur incubation center, there are other players like Ranchi incubation center, and आप उनसे बात करिए। वो ना केवल वो आपका आइडिया को बेहतर बनाएंगे, आपको इन्वेस्टर से बात करने के लिए रेडी करेंगे, आपको सलीका आएगा, आपका प्रोडक्ट को बेहतर कर देंगे, आपके पावर पॉइंट डेक्स अच्छे कर देंगे, आपके लिए कई दरवाजे खोल देंगे कि आपको इन्वेस्टर एटलीस्ट सुन ले। देखिए सर, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक आइडिया बनाया और दुनिया आपके पीछे भाग रही है, ऐसा नहीं होगा। मतलब तो आपको हमारी स्टार्टअप की लैंग्वेज में बोलते हैं एनेबलर्स, और इंक्यूबेशन सेंटर्स वो एनेबलर्स होते हैं जिनकी मदद लेनी पड़ेगी अगर आप लोगों को खुद नहीं जानते। और अगर आप जानते भी हैं तो लोग उतना इनिशियल स्टेज से भाव नहीं देते, वो तभी भाव देते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइज चैनल से आए। आप एक मेल लिखेंगे और अगर जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर से वो एक ही मेल जाएगी, उसकी वैल्यू 90% और 10% के वेरिएबल पे वो मारेगी। तो आपका जो क्वेश्चन है, आप सर सबसे पहले इंक्यूबेशन सेंटर से बात करिए, अपना आइडिया रिफाइन कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए, और फिर आगे बढ़िए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रोहित जी की बात में और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो स्टैब्लिश ही इसीलिए किए जा रहे हैं कि वी आर द नर्चरिंग पॉइंट्स फॉर द स्टार्टअप्स। तो वही चीजें हैं कि आप डेफिनेटली इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ते हैं तो हम एक इंक्यूबेशन पीरियड
अगर मैं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूं तो हमारा एक नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड से, हर इंक्यूबेशन सेंटर का कुछ ना कुछ रहता है। हमारे यहाँ जो इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज फॉर 9 months और एक्सटेंडेबल अप टू 1 year। तो वो पूरा 1 साल हम उस स्टार्टअप के साथ, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं कि वो अपने आप को नर्चर कर सके। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप्स जो हैं उन स्टेजेस पर वो जा सके, हर स्टेज पे उसको मेंटरशिप मिल सके, जहां जरूरत है नेटवर्किंग मिल सके, फंडिंग्स मिल सके। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। और जैसा कि हमें आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा और स्टार्टअप्स करने हैं, मेड इन इंडिया को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर्स। और हमें इस चीज़ के लिए हमें भी एक बहुत फील गुड फैक्टर है हमारे लिए भी कि हम अपने स्टार्टअप्स, हम वानाबी स्टार्टअप्स के लिए और एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। ये हमारा कुछ सीड हमने क्वेश्चन। No. प्लीज हम किस तरह से सीड इन्वेस्टमेंट फंडिंग कैपिटल को, अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो है, क्योंकि किस तरह से एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ हम कुछ अपना इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, इस सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ज़रूर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सर। इस पर मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर अपने व्यूज़ रखें। हाँ, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपने दो दोस्तों ने मिलके कंपनी बनाई, 50-50% इक्विटी लिया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपने 100 रुपए का सेल किया, आपकी कंपनी की टॉप लाइन हो गई 100 रुपए। आपको लगा कि मुझे अब एक्सटर्नल पैसे चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सपैंड। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बैंगलोर में ऑफिस खोलने के लिए 20 रुपए एडिशनल चाहिए। तो आप एक एंजल इन्वेस्टर पे गए, आपने उसको बोला मुझे 20 रुपए दे दीजिए, तो उसने आपको 20 रुपए दे दिए। उस 20 रुपए के एवज में उसने आपसे 20 रुपीज इक्विटी, 20% इक्विटी मांगा। वो नेगोशिएट करके फॉर एन एग्जाम्पल 10% इक्विटी पे सेटल हो गया। तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे थे बट आपने स्मार्टली अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 200 रुपए कर ली। आई डोंट नो इफ ये समझ आएगा कि नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल इन नेचर। आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो कैलकुलेट होती है आप साल में या मंथ में कितना रेवेन्यू करते हैं। कई सेक्टर्स में वो 5x होती है, कई सेक्टर्स में 3x होती है, कई सेक्टर्स में 8x भी होती है। तो आपने अगर एक साल में 100 रुपए की बिलिंग करी, टॉप लाइन जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज हो गई 500 रुपए। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इनटू आप कौन सा सेक्टर करते हैं। तो 500 रुपए पे जब आपने 50 रुपए रेज किए अपने अंकल से, तो आपने उनको 10% इक्विटी, अब 10% कंपनी का मालिक बना दिया। ये एक ब्रॉड फॉर्मूला है, दैट्स अ वे वी वर्क। और अगर आप वैसे सोचे जाएं कि अगर आप टॉप लाइन, अगर आप 100 रुपए की बिलिंग करते हैं और 50 रुपए अगर आपने किसी से रेज करे तो 50 रुपए देना चाहिए था, बट बिकॉज इन वैल्यूएशन यू मल्टीप्लाई, बिकॉज आप एक धंधा, चलता हुआ धंधा कर रहे हैं, उसकी एक वैल्यू बनती जा रही है, ब्रांड की वैल्यू बनती जा रही है। तो टिपिकल एक फॉर्मूला होता है कि हर साल की सेल्स को आप 5x कर दीजिए। अब देखिए इन सर्टन केसेस वो 10x भी होता है, एंड दैट्स वेयर योर इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड एक्सेलरेटर्स विल प्ले अ लॉट ऑफ रोल कि आपको वो वैल्यूएशन 5x मिलेगी या 10x मिलेगी। और एक और जी गो अहेड। मैं थोड़ा सा बेसिक लेने वाला था इसके बाद, क्योंकि वैल्यूएशन पे आपने पर आप कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली रोहित, और काफी, क्योंकि हमारे वैल्यूएशन पे जो अभी मैंने देखा कमेंट्स भी आ रहे थे लोगों के कि किस तरह से वैल्यूएशन होगा।
और जैसा कि आपने बताया कि इंक्यूबेशन सेंटर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप कहीं इंक्यूबेटेड हैं तो आपकी वैल्यूएशन हम किस तरह से, चाहे वो 5x कर रहे हैं या 10x उसको लेके जा रहे हैं, वो चीज़ भी डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा आपके थ्रू, हमारे व्यूअर्स भी शायद अभी से जो वानाबी स्टार्टअप्स हैं वो और एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स भी उसके लिए प्रिपेयर हो सकें कि बेसिकली एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंजल इन्वेस्टर, क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर फोकस करता है कोई भी एंजल इन्वेस्टर, या आगे चल के जब वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी जाते हैं, किन चीज़ों पर बेसिकली फोकस किया जाता है कंपनी के, कि जिसके बिहाफ पर जो है उन्हें एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा? क्या वो कोर टर्म्स हैं जिस पर हमारे स्टार्टअप्स जो है शुरू से ही वर्क करें कि उन्हें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सके, अच्छा एक्सपांशन कर सके? ये मैं एड्रेस करना चाह रहा था, तो थैंक यू फॉर सर। देखिए, ब्रॉडली ऑल ऑफ यू शुड हियर दिस। 3 ब्रॉड फंडामेंटल्स पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। हाउ गुड इज योर आइडिया, आपका आइडिया कितना यूनिक है। हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। मतलब इन सर्टेन केसेस आपका आइडिया कितना यूनिक है, कितना स्केलेबल है, मतलब वो कितना बड़ा बन सकता है, और आपकी कोर जो टीम है उसकी क्या लेवल है, मतलब उसमें कितना दम है। ब्रॉडली एंजल इन्वेस्टमेंट इन 3 पैरामीटर्स में होती है। कई एंजल इन्वेस्टर्स टीम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, आइडिया को थोड़ा कम देते हैं। कई लोग आइडिया को ज्यादा देते हैं, टीम को। वो आपको, मतलब जब आप 2 एंजल इन्वेस्टर से मिल लेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको इमीडिएटली वहां पे वो अपनी सेल्स ऑफरिंग चेंज करते रहना पड़ेगा। कितना यूनिक है आइडिया, कितना बड़ा बन सकता है आइडिया, और आपकी टीम की क्या कॉम्पोजिशन है और क्या कैपेबिलिटी है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंजल इन्वेस्टमेंट पे। जब आप उसके बाद वाले राउंड पे जाएंगे तो वो होगा कि एंजल इन्वेस्टर की क्वालिटी कितनी है, आपने कितना लर्न किया, आपका बिजनेस कितना बड़ा। बट बिकॉज आपको फर्स्ट ब्रिज क्रॉस करना है, तो पहले तो आप अपनी टीम अच्छी बनाइए, जो को फाउंडिंग टीम है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होने चाहिए। वन फंडामेंटल मिस्टेक्स दैट हम जो इंडिया में या हर जगह करते हैं कि 3 टेक्नोलॉजी कोडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने एक स्टार्टअप बना लिया। 3 आर फैंटास्टिक कोडर्स, बट माल बेचने की अकल नहीं है, तो वो इन्वेस्टर उनको पैसे नहीं देता। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, मतलब जिसको एक दूसरे के स्किल्स को आप जोड़ करके आगे बढ़ पाए, वो आपको बनाना है कोर टीम। वो आपकी कोर टीम अगर बन गई, फिर उसके बाद आपका आइडिया बेहतर होता रहेगा, और वो अच्छा, और वो कितना स्केलेबल होगा उस पर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। डेफिनेटली, और यही वो 3 कोर पॉइंट्स हैं जिस पर काफी समय हम फोकस कर रहे हैं और अपने स्टार्टअप्स को कंटिन्यूअसली इससे जोड़ रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि वो फोकस करें, एक अच्छे प्रॉब्लम को वो एड्रेस करें, उसको सॉल्व कर सकें, और एक अच्छा मार्केट, वो कितना बड़ा मार्केट कवर कर सकता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद आपका टीम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी टीम, जैसे कि रोहित ने भी कहा, कि कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जो आपके को फाउंडर्स हैं। अगर तो सिर्फ कुछ लोग आपके टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं, जिनका टेक्निकल स्ट्रांग है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, तो आपके पास मार्केटिंग वाले भी होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को लेकर बाहर तक जा सके, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सके, लोगों तक हम रीच हमारी बहुत अच्छी हो सके, जिससे हमारे आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जो है प्रोपोगेट किया जा सके, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को, से हमारा स्टार्टअप जो है एक अच्छा फ्लरिश कर सके। नेक्स्ट उस पर मैं जाना चाहूँगा। ये चीज़ जो है, एक बार हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, अब नेक्स्ट लेवल पर जो फंडिंग आ जाता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट का होता है। तो बहुत ही, मतलब एक सामान्य शब्दों में जो हमारे व्यूअर्स हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे समझ सकते हैं, वेंचर कैपिटल क्या हो सकता है, इस पर हम चाहेंगे कि आपके थ्रू सुन सके। बहुत सिंपल है यार, मतलब मेरे वर्ड में एंजल इन्वेस्टर
छोटा रिस्क लेते हैं, वेंचर कैपिटल बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीसी फर्म है एक जापानीज वीसी फर्म है कॉल्ड सॉफ्ट बैंक। वो सबसे बड़ा हमारा ग्लोबल फंड है। उसने पेटीएम और पोयो और फ्लिपकार्ट में पैसे डाले हैं। वेंचर फंड आपकी कंपनी में तभी आएगा जब आप अच्छे एंजल्स के साथ पैसे रेज करके अच्छी एक प्रोडक्ट लाइन या सेल्स फनल बना चुके होंगे, तो वो आपको एक्सपेंशन करने में मदद करेगा। वो ये बोलेगा ये लो 500 करोड़ रुपए और अब जा करके अपनी कंपनी की ऑफरिंग्स जापान में खोलिए, सिंगापुर में खोलिए एंड 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 ऐसे मूव करिए। एंजल इन्वेस्टमेंट अगेन जो मैंने इनिशियली भी बोला था, एंजल इन्वेस्टमेंट का साइज है अप टू 1 करोड़, अप टू 7 CR, अप टू $1 million, 7-7.5 करोड़ रुपए, अप टू $1 million। और अच्छे वीसी का साइज शुरू होता है $3 million, $4 million के बीच 7 से। तो वीसी फर्म्स जो हैं वो बड़ी, हम हिंदी में बोलते हैं ना, बड़ा रिस्क और बड़ा गेन, मतलब हम ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे, वो वीसी फर्म्स है। वो आपके पे ज्यादा पैसे लगाएंगे। और एक चीज और आप एक और चीज समझिए, लॉट ऑफ पीपल वुड ओनली, स्पेशली जब आप वीसी के पास जाएंगे, वो आपकी तब तक एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में बन गई होगी और वो तभी आपको एंटरटेन करेंगे। और जो आपके, तो वो उसमें भी वो आपको देखेंगे कि आप कहाँ इंक्यूबेट हुए, कहाँ एक्सेलरेट हुए, कैसे एंजल फंड से आपने पैसा उठाया, उस एंजल फंड के पास मतलब कितनी सेइंग है, कि पावर है, कितनी इक्विटी है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एक अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सब चीजें हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, बट जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, ये सब चीजें तब वो मैटर करेंगी। इट्स लाइक जब हम जब हम प्राइवेट स्पेशलाइज कोर्सेज में जाते हैं पढ़ाई करने, तो वो हमसे पूछते हैं कि स्कूल कौन सा था, आपने कॉलेज कहाँ से किया, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ये उस जैसे क्वेश्चन हैं जो इट विल लिंक बैक टू योर, कि आप कहाँ इंक्यूबेट हुए, हाँ, आपने कहाँ से पहला फंड रेज किया, किसने आपको सीड फंड दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप मतलब आगे मैं तो यही बोलूंगा कि आप पहला स्टेप अच्छा ले लीजिए। पहले 2 स्टेप्स अगर आपने अच्छा ले लिया तो राह फिर आसान हो जाती है यार। बिल्कुल फैबुलस एग्जांपल रोहित, रियली मैं खुद इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि किस तरह से हम जो बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली एक लेवल पे आने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ में, क्या हमारी स्कूलिंग कहाँ से थी, हमने पढ़ाई कहाँ से करी हुई है, आज जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि हम किस तरह से IITs, IIMs, जो हमारे ऐसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री में भी, वहाँ का जब हमको एक हमारे साथ अगर बैच होता है तो हमें अपने आप में एक रिगार्ड्स मिलते हैं। तो ऐसा ही अब स्टार्टअप्स के लिए भी है। इंक्यूबेशन सेंटर्स डेफिनेटली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी आपको हेल्प करेंगे कि आपका स्टार्टअप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सके। तो उनके लिए डेफिनेटली ये स्टेप फॉरवर्ड होगा, अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ें। और एक ये क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूँगा, हालांकि ये हम लास्ट बार भी हमने डिस्कस किया था कि हम इंक्यूबेशन सेंटर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया बहुत इंक्यूबेशन सेंटर्स, वो चाहे गवर्नमेंट फंडेड हो चाहे प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स, कंटिन्यूसली जो है लोग आपको हेल्प आउट करने के लिए सामने आ रहे हैं। आपको उन तक पहुंचने के लिए, जैसे आप अगर जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर को चाहते हैं, आप हमको अगर रीच करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट jicjabalpur.org। हम इसका लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। ऐसे ही आप डिफरेंट सिटीज में, ऑलमोस्ट हर सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, कनेक्टिविटी एक दूसरे से करी जा रही है कि हम जो है डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो हमारा एक मोटिव है वो यही है कि हम हर जगह के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें। आप देख रहे होंगे ये जो हमारा स्टार्टअप पाठशाला प्रोग्राम है, ये भी जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर है और कल्चुरी इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल
CII है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम है, ये सभी हम मिलके एक ये प्लेटफॉर्म हमने कोशिश करी है कि हम सामने ला सके और हमारे व्यूअर्स को जो है, हमारे जो बहुत सारे जो अभी युवा हैं उन सभी को एक गाइडेंस मिल सके। और आई होप कि उन्हें कंटिन्यूसली आज जो नॉलेज मिल रहा है कि कैसे हम बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और ये बहुत बड़ा पैसे की बात जब भी आती है विषय ना, पैसे की बात आते से सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि यार बिना पैसे की बात किए तो बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। आज हमको ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंच सके, कैसे बूट स्ट्रैपिंग करना है, सीड फंड्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे कंटिन्यूसली, और इसके बाद कैसे एंजल इन्वेस्टर्स को आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से जो है आपको अपनी टीम बनाना है, एक अच्छा आइडिया लेके आना है, सारी चीज़ें सब कुछ जो है। और हम इसी तरह से कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस लोगों को अपने इस स्टार्टअप पाठशाला पर इनवाइट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा से अच्छी नॉलेज मिल सके। अब रोहित, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आई होप अब हमारा इस 1 आवर सेशन का अराउंड 5 to 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और हैं लगभग हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कुछ फंडिंग टिप्स हैं, क्योंकि जब भी स्टार्टअप करने के बाद हर स्टार्टअप के लिए रहता है यार फंडिंग मिलना है, फंडिंग मिलना है, फंडिंग होती क्या क्या है ये हमको काफ़ी जानने मिल गया। अब कुछ टिप्स जो है वो ना केवल जो हमारे पास हमने जो आपके साइड से हमें स्लाइड में है, इसके अलावा भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं चाहूँगा कि ये 6 मिनट उन्हें वो वैल्यूबल टिप्स मिल सके कि जिससे उनको आने वाले टाइम में फंडिंग रेस करने में प्रॉब्लम ना हो, वो उनको माइंड में रख के आगे बढ़े तो उनकी फंडिंग का रास्ता आसान हो सके। प्लीज रोहित। ये सब लगभग हमने बात करा initially. First point, network meaningfully is when I am telling you go to a right incubation center. अगर आपने राइट इंक्यूबेशन सेंटर या राइट एक्सेलरेटर या राइट पार्टनर चुन लिया, वो आपके लिए ये सारे रास्ते खुद ही खोल देगा। आप इवेंट्स पे अभी तो खैर इवेंट्स नहीं हो रहे, मतलब आई एम श्योर another 2-3 months down the line we will be back in the business. CII इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये मंथली मीटअप्स होते हैं स्टार्टअप के। एक ऑर्गेनाइजेशन है हेड स्टार्ट, आप उससे, आई डोंट नो वो जबलपुर में है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। जबलपुर में है हमारे पास, वी हैव अ हेड स्टार्ट चैप्टर इन जबलपुर आल्सो। तो सारी चीजें जुड़िए, लोगों से मिलिए सर, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से समझते रहिए, अच्छी चीजें एक्सेप्ट करते रहिए, बुरी चीजें मतलब सुन के कान से निकालते रहिए, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। बी अडॉप्टेबल का मतलब है कि वही, लोगों से सुनिए, अच्छी चीजें रखिए, बाहर बेकार चीजें do not put lot of value to it. Third point is very critical. One of the things that had happened in अगर हम ऐसे सोचें, 5 साल पहले एंजल इन्वेस्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था इस कंट्री में, फिर हम जैसे फाउंडर्स ने उसको खराब कर दिया। तो आपको आज कंपनी जब आप पैसा रेज करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो पैसा आप किस चीज पे खर्च करेंगे, ना कि ऐसे कि मैं अपने लिए कार खरीदूंगा और अपना ऑफिस एक बड़ा कर लूंगा। इट विल नॉट बी लाइक दैट। सो यू विल हैव टू पिन पॉइंट इट टू द लास्ट लेवल कि मैं सर 10 बंदे रखूंगा, उसकी एवरेज 25,000 रुपए सैलरी है, तो मेरा सैलरी बिल 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, साल का 30 लाख रुपए मुझे सैलरी बिल चाहिए, ऑफिस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे इसलिए चाहिए। मतलब एक पे, मतलब अगेन मैं वो ही बोल रहा हूँ हिंदी में, पाई का हिसाब आपको इन्वेस्टर को देना पड़ेगा कि उसका 1 रुपया आप कहाँ यूज करेंगे। मैं ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और डेफिनेटली जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमको एक पाई का हिसाब रखना है, तो उसके लिए जैसा रोहित ने कहा कि हमें अपने आप से फेथफुल होना पड़ेगा, और हमारे इन्वेस्टर को भी हमें उतना ही फेथ दिखाना पड़ेगा, उनके साथ भी हमें अपने बिजनेस के साथ हमें फेथफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, आपको जहां से भी, अगर बूटस्ट्रैपिंग में भी आपको पैसा मिल रहा है, तो वो मनी कभी भी वेस्ट ना हो। इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन, एंड ईच
every bit of money should be utilized to expand your business. अगर बिजनेस वो करने के पैसा, लिए आप ये याद रखिएगा, वो पैसा कंपनी को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। बिल्कुल और बिल्कुल फंडामेंटली कंपनी और आप अलग अलग होते हो। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब हर एक इन्वेस्टर की एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। वो ये पूछेगा कि मैं सो ओयो रूम्स के बाद मुझे और धंधा नहीं करना, आई विल एग्जिट, एंड समबडी हु हैज अ विजन ऑफ मेकिंग इट लाइक 100 ओयो होटल्स वुड कम। तो हर एक पॉइंट पे आपकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सर मैं 100 यूनिट बेचूंगा तो इतने पैसे चाहिए, जैसे ही मेरे 10,000 यूनिट होंगे मैं आपकी इक्विटी खरीद लूंगा और आप बाहर चले जाइए। सिंपल। बैंकेबल टीम हमने बात कर लिया कि आपकी टीम सुपर सेक्सी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। डेफिनेटली। बिजनेस एक्सपेंशन तो सर ये सिखाना थोड़ा मुश्किल है। ये जब जैसे आप 2 महीने 3 महीने जब धंधा कर लेंगे, आपको ये अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आप एंसिलरी, जिसको बोलते हैं एंसिलरी लाइन ऑफ बिजनेसेस, क्या खोल सकते हैं। वो जैसे फ्लिपकार्ट ने बुक्स खोला, फिर कपड़े ऐड किए, फिर अब उन्होंने OTT मतलब टीवी भी ऐड कर दिया, जिसमें आप कंटेंट भी देख सकते हो। तो ये इसको आप एक्सपेंशन लाइन बोल दीजिए। कभी ये एक्सपेंशन लाइन आप खुद बनाएंगे, कभी अक्वायर कर लेंगे। बिल्कुल। चेंजिंग मार्केट डिमांड्स के हिसाब से हम अपने बिजनेस में कैसे कुछ और एड ऑन्स करते चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली उस पर ग्रो करता चले। डेफिनेटली। और एमवीपी को हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं कि आप जब एक इन्वेस्टर पे जाएं तो आप कंसिडरिंग, बिकॉज मार्केट है चेंज, तो आपको आइडिया ना लेके जाएं। तो अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो एक ऐप का वायर फ्रेम और ऐप की वर्किंग मोडालिटी हो, वो दिखा पाएं। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रोबोट बना रहे हैं, तो एक रोबोट बना हो जिसको हम पहले जमाने में वो बोलते थे ना, एक सैंपल बना लें, तो वो सैंपल को इंग्लिश में एमवीपी बोलते हैं ब्रॉडली। बिल्कुल। इस पर भी हमने लास्ट सेशंस में भी रोहित काफी डिस्कस किया था कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचना है स्टार्टअप्स को, और उसके बाद ही जब तक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बेसिकली बनने के बाद ही वो कस्टमर्स तक और कुछ लोगों तक जाके अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि डू दे रियली वांट देयर प्रोडक्ट और नॉट, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। फिर उसके बाद ही फंडिंग के लिए जाएं। And one last question, Rohit, we have, because already हम कुछ मिनट्स हम ऊपर जा चुके हैं, बट हम चाहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जरूर लें क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज आई वुड लाइक टू जस्ट वन या मेजर हेड्स अंडर विद द फंड एक्सपेंडिचर टू बी प्लान। ये एक मैं चाहूंगा कि आपके कुछ हमें इंपॉर्टेंट टिप्स इस पे मिल सके हमारे स्टार्टअप्स के लिए कि किस पर बेसिकली हम अपनी फोकस कर सकें कि उन्हें कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है, सैलरीज में कि सर ये डिपेंड करता है आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका लाइन ऑफ बिजनेस ये है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट, जैसे अमेजोन का सबसे बड़ा एक्सपेंस सेंटर है उनके वेयर हाउसेज, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट स्टोर करने होते हैं। मेरा सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर, मेरी सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर है मेरी सैलरी लोगों की, क्योंकि मेरा जितने हाथ उतना मेरा काम बढ़ता है। आपका क्या लाइन ऑफ बिजनेस है, बट बिटवीन मतलब आपका फर्स्ट फंडामेंटल तो सैलरी होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। आपका अगर सैलरी सॉर्टेड है और अगर आपने सैलरी पे आई रखा हुआ है, मतलब आई रखा हुआ है, अपनी आंख रखी हुई है, तो आपका बिजनेस कभी नहीं फेल होगा। आपने अगर ये मेंटेन किया हुआ है कि 100 रुपये आए और मैं 80 ही खर्च करूंगा और 20 अपने पास रखूंगा, तो आपका बिजनेस। सर देखिए, ऑफिस की जरूरत धीरे धीरे कोविड-19 ने सिखा दिया कि ऑफिस की जरूरत कम है, तो ज्यादा फैंसी ऑफिस अब मुझे लगता नहीं एमसीज भी रखेंगे, घर से भी अब काम हो रहा है। तो आपका सबसे बिगेस्ट कॉस्ट इज द पीपल कॉस्ट, विच इज सैलरी, उनका रख रखाव, वो सब आप ज्यादा फोकस करें और बाकी सब छोड़ दें। बिल्कुल, दिस इज अ फैबुलस टिप और डेफिनेटली इससे काफी हेल्प आउट मिलेगा। जो भी ये फैंसी चीजों पर काफी एक्सपेंडिचर होता था, अब उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो हम जो बोलते हैं कि HR एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पर राइट लोगों तक जो है अमाउंट्स पहुंचेंगे, राइट लोगों तक एक अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा।
और डेफिनेटली हमको इस कोविड में, मैं वही तो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत कुछ सिखा गया हमें कोविड। अभी एंड नहीं हुआ है, स्टिल वी हैव गॉट लॉट टू लर्न, बट और अगर हम देखें तो हमें काफी कुछ बहुत अच्छा सीखने मिला है। और एंड वी हैव नाउ रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस सेशन। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज ये सबसे अच्छा टाइम है स्टार्टअप करने का, एंड आई विल टेल यू द रीजन। प्लीज। इस समय इतना टैलेंट अवेलेबल है मार्केट में, जो पहले छोटे स्टार्टअप की तरफ देखता भी नहीं था, वो भी आज स्टार्टअप के साथ काम करने को तैयार है, बिकॉज ही और शी हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हर बिग कंपनी। इस टाइम इतना अच्छा टैलेंट अवेलेबल है एट ए 50% कॉस्ट। जैसे पहले कपड़ों पे डिस्काउंट मिलता था 50%, इस टाइम टैलेंट पे मिल रहा है। अगर आपको करना है, इस टाइम को फाउंडर भी आसानी से मिलेंगे। अगर करना है तो अभी करिए, नेक्स्ट 3 months यू विल बी एबल टू रन दिस होल रेस मच फास्टर। और ये वो लोग हैं जो शायद काफी सेटिस्फाइड लोग थे, बट सडनली जॉब जाने के बाद दे रियलाइज देयर पोटेंशियल। मतलब हम इसको अगर पॉजिटिव में भी लें तो पीपल विल रियलाइज दिस देयर पोटेंशियल, क्योंकि हमने मैक्सिमम फाउंडर्स ऐसे देखे हैं कि उन्हें शायद जॉब नहीं मिला था, इसके कारण उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, व्हेन somebody was rejected from फेसबुक पे उनको रिजेक्ट किया था तो वो व्हाट्सएप बना दिया उन्होंने। तो दैट्स समथिंग कि ऐसा ही आगे भी होने वाला है। एंड वी बिलीव कि जो हमने काफी आज रोहित हमें काफी कमेंट्स में मिला, हमें मैक्सिमम कमेंट्स में पॉजिटिव वाइब्स के मैसेजेस मिले हैं। तो वी होप ये पॉजिटिव वाइब्स हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे सभी के लाइफ्स में कंटिन्यू रहें और हम डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टार्टअप जर्नी कर सके सभी लोग। थैंक यू सो मच रोहित फॉर कमिंग ऑन आवर स्टार्टअप पाठशाला। इट वाज रियली अ फैबुलस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय। Thank you. Bye everyone. Bye. We end our session now. Okay. Bye.